Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Enhance Education. This is your chapter 5th of class 12th Mathematics. जी हाँ, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर that is continuity and differentiability. So for let's start about first topic that is continuity. और सबसे पहले बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि what is the a function or a function which is continuous. So a function, any function which you can draw without lifting the pen can be, suppose if I make a curve like this, okay, you can see that here I have not lifted my pen. So if you are able to draw any curve without lifting the pen, then such kind of function is called a continuous function. Okay, so one more example I can give you. Suppose a very basic function which is y is equal to x. Okay, if you draw this graph of this function, then the function would be like this. It will passes through the origin and it is a straight line like this. This is your y is equal to x, and here you can draw the graph without lifting the pen. Again, so I am telling you some more examples like this, some very simple as well. These are very simple examples like one is y is equal to x square. Okay, if you draw the graph of this y is equal to x square, so graph of this would be like this is your graph of the parabola. So you can draw the graph again by without lifting the pen. Okay, if you take, if you increase the degree like this x cube, so you can draw its graph as well. And for drawing this graph you need not to, okay, I'm drawing the graph of this, so you can draw, and the graph of this is like this is your y is equal to x cube. So here you can see that all such graphs you can draw without lifting the pen. So this is the very basic definition of continuity, and I hope you understood that what is the feeling. The very simple feeling, that is not a very difficult one to understand the meaning of continuity. As you know, the continuity is tell you the name that's continuous. Okay, that is the graph is continuous, there is a no break in the graph. Then you can say that such kind of graph which is a function is a continuous function. Let's move to mathematically we try to understand what are the continuous function. So here is the first illustration which is given as this. Okay, here the value of domain it's exist for it's a real value function, है ना? So you can take any value of x, it can be negative, it can be positive. Okay, so when you draw the graph of this function, so you how you will draw the graph. Okay, I am drawing this graph of this function. So the graph of this function will be like this. Okay, so when your value of x is equal to 0 or less than 0, the graph would be equal to 1. Okay, so the value is constant for this period of domain. Okay, so when x is equal to 0 or less than 0, so here your value here is on the x-axis is x and y-axis is y. So suppose this is your value. Okay, so when your x is 0, then we will draw uh, a dark circle for representing that the value is there. For x is equal to 0, the value of function is there. So dark circle represent this. Okay, and when your value is greater than 0, not 0, greater than 0, and at equal to 0 it is equal to 1, this is equal to 1, but when it is greater than 0, then your value is remains to constant. Okay, so this is the graph of this function. Now here you can see that when I, if you want to draw the graph of this function, then you will go like this from infinity, from minus infinity up to 1, and then you have to lift the pen and move to the point 2 and then move for the positive x side. So you have to lift once a pen. So here the graph is discontinuous at this point. Okay, so here this is the way. Now mathematically you have also know about the left hand limit and right hand limit.
So what is the left hand and right hand limit? So here when you move along the x-axis from the negative side, you say that we have calculate the left hand limit from left hand side. This is the left hand limit, and even x is moving towards 0, x is moving towards 0, this is your 0. And when we move x from the right hand side towards 0, then the limit is 2. So here the left hand limit, okay, is left hand limit is 1, and the right hand limit is 2. Okay, so you have already know about the limit in your 11th class. Okay, this is the expected value at some point when you approaches towards 1 from left hand side, then the value of y is expected as 1. Okay, and when you move from the right hand side towards 0 on x, and when x is tending towards 0, then y tending towards 2. So this is the right hand limit. So this is your left hand limit is equal to 1 and right hand limit is equal to 2. So it means that the left hand limit is not equal to right hand limit. So we say that limit does not exist. Okay, here limit does not exist. Okay, and the value of the function, what is the value of the function? The value of the function is the value of the function at x is equal to 0. We are talking about here, we are talking about at x is equal to 0. Okay, so this is the point, because at x equal to 0 this value is changing, but when you are on the left hand or the right hand side, the values remains constant, and constant function are always continuous. So here only the point talking about is 0. So here the limit does not exist. When limit does not exist and your value of the function at 0, okay, means that is when x is equal to 0, the y is equal to 1, and this is equal to 1. So here limit does not exist. So because of the limit does not exist, this function is discontinuous. We can say that this is a discontinuous function. ओके, तो लेमन टर्म से तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही इजीली, लेकिन आपने मैथमेटिकली देखा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, तो फंक्शन जो है वो डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड। देखिए दो मैथमेटिकल टर्म है आपकी, एक तो लिमिट के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर लिमिट, वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हम लिखते हैं। और फंक्शन के लिए मैथमेटिकल टर्म्स क्या यूज की जाती है? फंक्शन के लिए यूज किया जाता है डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो ये आप ध्यान रखें, लिमिट के लिए एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन के लिए डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। अब हम यहाँ बात करें इलस्ट्रेशन सेकंड में, तो यहाँ पर भी फंक्शन की दो वैल्यूज हैं। अब यहाँ देखिए लिखने का तरीका क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 तो हम उसके लिए लिमिट निकालते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो विल ड्रॉ लाइक दिस कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ अगर 0 है आपका तो फंक्शन आपका क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी आपकी 2। when x is equal to 0 the value of the function is 2। तो दिस इज, हम यहाँ डार्क सर्कल बनाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू ये है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो फिर आपका जो वैल्यू होगी उसकी, ये तो आपकी 2 हो गई, तो उसके अलावा जो वैल्यू होगी उसकी 1 होगी। यानी यहाँ हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चाहे आप नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए यही वैल्यू होगी, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर हमें होलो सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें लिमिट्स की, तो आप देखेंगे कि व्हेन यू मूव ऑन द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स 0, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ हो जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो आपको देखना जब x 0 की तरफ मूव कर रहा है ना, व्हेन योर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी व्हेन लिमिट अगर लगाते हैं इस तरह से, व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, और fx पर लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यूज आ रही है? तो हमारी जो वैल्यूज आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यूज 1, वेदर इट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही 1 आ रही है। बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप ये क्लियर देख पाएंगे कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट जो है, लिमिट को हम क्या बोलेंगे, इट एग्जिस्ट। पिछले वाले केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2,
वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पहले मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है। ठीक है, जहाँ पर वैल्यू चेंज होती है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इज ऑल्सो गिवन, यानी हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, वो डिफाइंड है, गिवन फंक्शन डिफाइंड है, और लिमिट भी आपकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो लिमिट है, जो कॉमन वैल्यू है लिमिट की, इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, है ना। और यहाँ पर आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो, ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन यहाँ बात क्या है कि बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो फंक्शन है, अगर आप देखें लेमन टर्म के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैं फंक्शन को अगर ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट पर आकर मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर पेन मूव करना पड़ेगा 1 से लेकर 2 तक, यानी आई हैव टू लिफ्ट अगेन वंस, ओके, टू ड्रॉ दिस ग्राफ। यानी मैं इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ ये हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शन इज एज वेल, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक ही जगह है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाकी कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ एक ही जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने ये देखा यहाँ पर, देखिए कि अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, और अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा वो, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों बराबर ना होने की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हम समरी कंक्लूड करेंगे बाद में। तो लेट्स मूव टू द इलस्ट्रेशन आपकी विषय। अब यहाँ पर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ, एक ग्राफ में बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा मान लीजिए ग्राफ इस तरह से एक आ रहा है, और ये वैल्यू इस तरह से है, और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ जा रहा है। सपोज यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी है 2, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप मूव करें, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर इस तरह से, मान लीजिए ये है आपका वैल्यू 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा यहाँ पर जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट वो है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 पर हम बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी अगर आप 3 तो जाए लेफ्ट साइड से, तो आपकी जो वैल्यू है y पर वो क्या होगी, यानी y कहाँ जा रहा है, y आपका पहुंच रहा है 2 पर, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी इसको वैसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, है ना, और फंक्शन जो भी वो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, ओके। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर आप देखें, यानी लिमिट आप लगा रहे हैं एक्स वन टेंडिंग 3 टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड फॉर दिस फंक्शन, तो उसकी वैल्यू भी कहाँ अप्रोच कर रही है 2 पर, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या है, बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो है आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए कह सकते, पहले भी पढ़ चुके हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ अगर आप देखें जो फंक्शन की वैल्यू है एट 3, क्या कोई वैल्यू है 3 पर, कोई वैल्यू है, होलो सर्कल है, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं है, यानी हमारा यहाँ ग्राफ अवेलेबल ही नहीं है। जब ग्राफ किसी पॉइंट पर अवेलेबल ना हो तो हम उसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं कि वो फंक्शन आपका क्या है, नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो आपकी लिमिट तो यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिमिट आपकी एक पॉइंट जो है हमारा, हम लिमिट की और फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन भी डिफाइंड हो, लेकिन वो बराबर ना हो, तो हमने केस पढ़ा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पेन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा एक पॉइंट के ऊपर। तो ये जो फंक्शन होगा आपका, दिस फंक्शन एज वेल इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, और ये भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, 3 पर जाकर हमें पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर ग्राफ। इसके लिए मैं एक ग्राफ आपको ड्रॉ करता हूँ, और इसमें एक अलग सिचुएशन होगी। देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये जो है मान लीजिए ये पॉइंट अगेन इज 3, और ग्राफ मेरा इस तरह से आता है, ये यानी ये आप मूव करेंगे तो ग्राफ यहाँ से जाएगा इस तरह से, और जैसे जैसे आप 3 की तरफ मूव करते जाएंगे ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जाते हैं इधर तो ये ऐसे अप्रोच करेगा, यानी इट्स नेवर मीट्स टू दिस लाइन, यानी इस लाइन को मीट नहीं करेगा, यानी
वाई एक्सिस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है टूवर्ड्स, यानी ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा जाकर इन्फिनिटी पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी, ठीक है, यानी किस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, अगेन एट एक्स इज इक्वल टू 3 की बात ही कर रहे हैं, या कुछ भी पॉइंट हो सकता है, यानी वन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 3 नेगेटिव, यानी इस साइड से 3 की तरफ अप्रोच करें, तो आप वाई में कहाँ की तरफ अप्रोच करेंगे, तो वाई यानी और इस फंक्शन जो भी फंक्शन होगा इसकी वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना दैट वुड बी इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ये एक्स पर कभी मिलेगा ही नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालें, तो आपके पास हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें भी राइट साइड पर आएंगे आप 3 की तरफ, तो आपकी y की वैल्यू अगेन इन्फिनिटी आएगी। यानी कहने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जो है ना 3 के ऊपर, 3 की बात करें अगर आप सिर्फ, तो यहाँ पर जो है वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड भी नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ना तो फंक्शन डिफाइन है, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन का मतलब इसकी इन्फिनिटी वैल्यू होगी, तभी हम कहते हैं नॉट डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड ऑल आर इन्फिनिटी, तो क्या अब ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा मैथमेटिकली, अभी भी हम इसको कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे, जी हाँ अभी भी हम इसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे, अभी भी ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और कहाँ होगा डिसकंटिन्यूस, एट एक्स इज इक्वल टू 3 अगेन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है, आप कभी वापस ही नहीं आएंगे, मतलब कि ड्रॉ नहीं कर सकते आप कंप्लीट, ठीक है। तो इस जितनी बातें हैं हमने अब तक जो पढ़ी, देखिए अब पिछला जो हमने इलस्ट्रेशन था, हमने वहाँ देखा लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, और आपका फंक्शन जो था वो भी डिफाइन था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, फंक्शन भी डिफाइन था, तब भी डिसकंटिन्यूस था, तो ये सफिशिएंट नहीं है कंडीशन। दूसरा हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, अगेन फंक्शन भी डिफाइन था, ठीक है, तब भी डिसकंटिन्यूअस था क्योंकि बराबर नहीं था। यहाँ रीजन क्या था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस, द रीजन इज दिस। हियर द रीजन व्हाट इज द रीजन, यहाँ पर रीजन ये था कि इनकी दोनों डिफाइन तो थे, दोनों डिफाइन तो थे, लेकिन वैल्यूज जो है वो, सॉरी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सॉरी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए तो लिमिट के एग्जिस्ट करने से भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर ना होने की वजह से भी हो सकता है, तो कितने रीजन हो सकते हैं। उसके बाद अगर फंक्शन आपका डिफाइन ना हो तो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और अगर फंक्शन भी डिफाइन हो, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो और बराबर भी हो, लेकिन डिसकंटिन्यूअस तब भी हो सकता है अगर उनकी वैल्यू फाइनाइट ना हो, यानी फाइनाइट होना भी जरूरी है। तो मैथमेटिकली लेमन टर्म आपने समझ ली, अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो ये सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पर है, कि कोई भी मैथमेटिकल डेफिनेशन किसी पॉइंट के लिए अगर हम बात की जाए, और फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, किसी सी पर, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन अगर उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, ठीक है। और इसको अगर आप और एक्सप्लेन करें, है ना, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब तो होता है कि जब वो एग्जिस्ट कर रही है तो उस टाइम पर वो कॉमन वैल्यू देती है, तो ये आपकी कॉमन वैल्यू है, ठीक है, लिमिट, लेकिन वो कॉमन वैल्यू क्या होगी, जो दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होंगी वही कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है, और वही ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो सकती है एट पॉइंट सी पर। और ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये भी होनी चाहिए, चौथी चीज ये भी है। तो देखिए चार चीजों हमने पिछले इलस्ट्रेशन में पढ़ी, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और वो फाइनाइट भी होनी चाहिए, और एक और चीज़ थी कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये आपके टोटल है, ठीक है, ये आपका एक पूरा एलोब्रेशन है कि क्या होना चाहिए, कब आपका फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान ध्यान रखें कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर आपको दिया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो आप ये कह सकते हैं उसके लिए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट तभी होगा ऐसा, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल था हमारा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फिर भी वो डिसकॉन्टिन्यूस था, क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं, तो लिमिट का एग्जिस्ट करना इस बात की गारंटी नहीं है, तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते, ये जो बात है हम इसको उल्टा ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरीके से अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है, फंक्शन जो है ये गारंटीड है
कि कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको उल्टा कह सकते हैं कि फंक्शन भी डिफाइंड है तो वो कंटिन्यूस होगा? नहीं, उल्टा हम नहीं कह सकते। देखिए, इसको हम उल्टा इम्प्लीकेशन नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ इलिस्ट्रेशन में देखेंगे आप कि अगर आपका जो है फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, जैसे यहाँ देखते हैं फंक्शन आपका ये फंक्शन देखिए यहाँ डिफाइन है, तो फंक्शन डिफाइन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो कंटिन्यूस ही होगा। यहाँ देखिए डिसकंटिन्यूस हो गया। तो सारे इस एग्जांपल में सारी आपकी पूरा समरी हमने दी हुई है। तो आपका जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो भी देखिए वही है कि सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन ये होता है कि जब उसकी वैल्यू, अगर आप आपका डोमेन जो होता है, डोमेन, ठीक है, डोमेन भी आपका रियल हो और आपकी जो रेंज है ना, वो भी रियल आए, रियल वैल्यू आए। ठीक है, दोनों ही चीजें रियल हो तो उसको हम कहते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट सी बी a point in the domain of f, then f is continuous function if limit of the function is equal to value of the function, and one more thing, it should be is finite, it should be finite। तो आई होप ये जो इसका जो आपकी मेन क्रक्स था, जो मेन इसका फीलिंग थी, आपको आ गई होगी कंटिन्यूटी की। तो इसके एग्जाम आप जितने भी इसके क्वेश्चन करेंगे उससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन एक्चुअली में कंसेप्ट को समझना और उसको फील करने से आप बहुत अच्छे तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका कॉन्टिन्यूटी का हो गया है, इसको और हम समझेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी को उसको समझते हुए, तो हमारे एग्जाम्पल कवर होंगे और हमारा एक कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।